نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری کامریڈ ناصر منصور سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور ابتدائیہ کلمات سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ ساتھیوں، میں آج 260 شہداء کے لاحقین، ان کے بچوں، ان کی بیواؤں، ان کے والدین اور ان کے عزیز و اقربا جو آج اپنے شہداء کے یاد میں تقریب کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ شہداء کا دکھ، شہداء کا غم، جو ہمیں تکلیف گزری ہے، وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح آج سے 11 سال پہلے ٹھیک اسی وقت ہم یہاں موجود تھے اور ہمارے پیارے اس فیکٹری کے اندر آگ میں جھلس رہے تھے، چلا رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، لیکن ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ فائر بریگیڈ، رینجرز، پولیس کوئی موجود نہیں تھی۔ یہ ملک جو اپنے آپ کو ایک ایٹامک پاور کہتا ہے، وہ چلتے ہوئے انسانوں کو نہیں بچا سکا۔ ہمارے بچے مرتے رہے، ایک ایک لمحے کے ساتھ ان کی جان جاتی رہی، آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا رہا اور یہ ہمیں بتاتا رہا کہ ہماری فیکٹریوں اور کارخانوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ یہ فیکٹری آج اس کا نشان بھی انہوں نے مٹا دیا ہے۔ یہ فیکٹری قاتلوں نے کسی اور کے حوالے کر دی ہے، لیکن ہمارے ایک ایک شہید کا نام، نشان اور یاد آپ ہماری زندگیوں سے نہیں نکال سکتے۔ ہم ہر آنے والے دن میں، ہر آنے والی برسی کے موقع پر اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اپنے قاتلوں کو للکاریں گے تا وقت کہ ان قاتلوں کو قانون کے مطابق جو ہے سزا نہ دی جا سکے۔ ساتھیوں، یہ 11 سال کی جدوجہد کا ہم قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے تک نہ لا پائے، اس کا ہمیں قلق بھی ہے اور ہمیں اس کی تکلیف بھی ہے، لیکن ہم اپنی اس تکلیف کو ہم اپنی طاقت بنا رہے ہیں۔ ہم ان کو ان کی کمی گاہوں سے باہر نکالیں گے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑے کریں گے۔ بدقسمتی ہم سب کی یہ تھی اور انصاف کے دینے والوں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور پاکستان کی ریاست کی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو مظلوم بنا کے پیش کر دیا اور یہ کہا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ دہشت گردی کا نتیجہ ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین کرنے پر ہمیں مجبور کیا کہ یہ جو ہے اس میں مالکان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ فیکٹریوں، کارخانوں میں آج بھی جو ہے وہی حالات ہیں۔ ہر آئے روز جو ہے اسی طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، فیکٹریوں میں آگ لگ رہی ہے، بوائلر پھٹ رہے ہیں، مائنس کے اندر 10 کے ورکر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔
لیکن اس ریاست کے اوپر جو ہے ذرا بھر بھی اس کو جو ہے احساس نہیں ہے اس امر کا. ہم یہ جیسے میں نے کہا ہم قاتلوں کو انجام تک نہ پہنچا پائے، لیکن شہداء کی تنظیم جو ہے اس نے اپنے اتحاد کی قوت سے اور مزدور تنظیموں، پاکستان کی مزدور تنظیموں، مزدور تحریک اور بین الاقوامی مزدور تحریک کے نتیجے میں ایک تاریخ رقم کی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعیدہ باجی، عزیز بھائی، اسحاق بھائی، جابر بھائی اور اس طرح کے درجنوں ہمارے ساتھی جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، انہوں نے ایک بڑی جدوجہد کی. یہ پہلا موقع تھا پوری جرمنی کی تاریخ میں کہ پاکستان کے ورکرز نے جرمن کے اس برانڈ کے خلاف جرمنی میں جا کر کیس کیا جو یہاں سے مال بنواتا تھا. آپ یہ دیکھیے یورپ جو انسانی حقوق کا چیمپئن ہے، جو ہمیں سبق سکھاتے ہیں، خود جرمنی میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں تھا کہ جرمن برانڈ کو وہ اکاؤنٹ فار کرتا، اس کو قانون کے کٹہرے میں لاتا. 5 سال کی جدوجہد کے بعد جو ہے ہمارا کیس وہاں سے خارج ہوا. لیکن بین الاقوامی انسانی حقوق کی اور مزدور تنظیموں، میں نام لینا چاہوں گا کلین کلاتھ کیمپین، انڈسٹریل گلوبل یونین، ECCHR اور میڈیکو انٹرنیشنل جیسی بہت ساری تنظیمیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جرمنی میں اس سال دسمبر میں ایک بہت ہی تاریخی واقعہ یہ ہوا کہ وہاں یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ اب جرمنی میں کوئی بھی کمپنی آ کر اپنا مال بیچے گی تو اس کو وہاں پہ اگر کہیں دنیا میں جرائم کرتی ہے وہ تو اس کو اکاؤنٹ پر کیا جا سکتا ہے، اس کو قانون کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے. یہی کچھ ہالینڈ میں ہوا ہے، ایسا ہی قانون نیدرلینڈ، ایسا ہی قانون ناروے میں بھی آ گیا ہے، اور ایسے ہی قانون پر یورپین یونین پارلیمنٹ کے اندر بات ہو رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے اس سال یہ لا بھی جو ہے پورے یورپ کے اندر لاگو ہو جائے گا. یہ پاکستان کے مزدوروں اور ہمارے شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے مزدوروں کے خلاف اگر کہیں پہ بھی کوئی ظلم ہوگا ان کے خلاف جو ہے یورپین کے جو ہے وہاں کے قانون کے اداروں کے اندر جا کے ان کے خلاف کیس کیے جا سکتے ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گی مس حسنہ باجی کو، آئیں اسٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بلدیہ فیکٹری فائر کی ایسوسی ایشن ہے، حسنہ باجی جو ہے سعیدہ خاتون کے بعد جو ہے اس کی چیئرپرسن جو ہے منتخب ہوئی ہے. السلام علیکم، میرا نام حسنہ ہے اور اس سانحہ بلدیہ میں میرے شوہر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور 259 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کا ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا. حکومت سے ہم ایک ہی بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، لیکن انصاف ابھی تک کہیں نہیں ملا. جس طریقے سے ہمارے شوہر شہید ہوئے ہیں، کسی کے ماں، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا شہید ہوا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے فیکٹری میں ایسا حادثہ دوبارہ نہ ہو. اور اب میں دعوت دوں گی سائرہ فیروز کو، آئیں اسٹیج پر. اور آج اس واقعے کو جو ہے وہ 11 سال گزر چکے ہیں، لیکن 11 سال کے بعد بھی ویسے ہی آگ لگتی آ رہی ہے. مطلب ہمیں یہ تھا کہ اگر یہ بہت بڑا حادثہ تھا اور تو اس کے بعد یہ کہ ہمارے پاکستان کے قانون میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا قانون تو بنا دیا گیا ہے، لیکن اس بدقسمتی سے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. اتنا بڑا حادثہ جو 260 ورکرز جس میں شہید ہو گئے، بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو زخمی ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی پاکستان میں اور کراچی میں ایک کے بعد ایک واقعات ہوتے جا رہے. جیسے کہ میرا تعلق نیو کراچی سے، تو ابھی حال ہی میں ایک واقعہ رمضان کے مہینے میں آیا اور ایک واقعہ ابھی اگست کے مہینے میں پیش آیا. گو کہ وہاں پر کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ کوئی زخمی ہوا ہو یا کوئی شہید ہوا ہو، لیکن ہاں ایک فیکٹری میں فائر فائٹر جو تھے آگ بجھاتے ہوئے پوری بلڈنگ گری اور وہ شہید ہو گئے. تو یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا قانون ہے
उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए, ताकि अगर मजदूर घर से निकलता है तो उसको कम अज कम इतना पता हो कि मैं घर वापस आऊँगा। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बशीर बलोच से कहता हूँ कि वो आएँ यहाँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। रहमान रहीम, स्टेज पे बैठे हुए एनटीओ के मरकज़ी कायदीन, पैलर के मरकज़ी कायदीन और दीगर तंजीमों के कायदीन और पिंडाल में बैठे हुए मेरे नज़रियाती दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शोहदाए बल्दिया के शहीदों को सरोग सलाम पेश करता हूँ और मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जिस तरह से जो सनतों में मजदूरों का इस्तेसाल होता है, जैसा कि 11 साल पहले यहाँ पे हम लोगों ने 260 लाशें उठाई है, तो उसके 3 साल बाद शिवब्रेकिंग गडाली में भी ऐसी आग लगी थी, वहाँ पे भी 30 के करीब लोग शहीद हो गए और कई लोग जख्मी हो गए, क्योंकि मजदूर कब तक इस तरह से लाशें उठाते रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी नायतपा की है, क्योंकि जो नासिर भाई ने कहा है कि यहाँ पे हमें 11 साल लगे हैं कि अभी तक हमने उन मुजरिमों को सज़ा नहीं दिला सके। तो यहाँ पाकिस्तान में, इस मुल्क में 2 तरह के कानून हैं। एक कानून एलिट क्लास के लिए, वो सिर्फ 2% है, बाकी 98% जो हम लोग मजदूर तबके के लोग हैं, हम लोग के लिए अलग कानून है। लेकिन मजदूरों को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग अक्सरियत में ज़्यादा है और हमारी वजह से सनतें उनकी चलती हैं। मजदूरों का हाथ है तो उनकी मशीनें चलती है, लेकिन हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें यूनिटी नहीं है कि जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। नारा मजदूर, अली एंटरप्राइज के मजदूर शहीदों को सलाम, सलाम, योम मई के मजदूर शहीदों को सलाम, सलाम, 7-8 जून के मजदूर शहीदों को सलाम, सलाम, मुल्तान कानूनी टेक्सटाइल मिल के मजदूर शहीदों को सलाम, सलाम। नारा मजदूर। जी शुक्रिया। 11वीं बरसी को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर पर सानिया बल्दिया अफेक्टेड एसोसिएशन जो हैं, इन तमाम साथियों को, हुस्ना, जमील भाई, सिद्दीक भाई, शौकत भाई, इन सब तमाम साथियों को कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज कामयाब बनाया है और आज बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि तकरीबन सारे लोगों ने बात कर दी, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी, एक बात को ख़ास तौर पर, कि ये 11वीं बरसी हमारे लिए याद करने वाला दिन इसलिए ज़्यादा रहेगा कि वो जो अलामत थी हादसे की याद करने की, वो अलामत यहाँ से गायब हो चुकी है। सिर्फ इसको याद रखिएगा कि ये बिल्डिंग जिस तरह से गायब हुई है, इस तरह से हमारे लोग जो हैं वो इस वाक़ये को ना भूलें, ना भुलाएं इसको, और ना ही जो है वो जो हमारी बुनियादी डिमांड थी, जो बुनियादी मुतालबा था कि काम की जगहों को महफूज बनाया जाए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए महफूज बनाया जाए, इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं वो जली हैं यहाँ पर, और सिर्फ मजदूर इसलिए बचा कि वो या तो ब्रेक था या फिर रात का टाइम था, वरना इससे बड़े हादसा हो चुके हैं, इससे ज़्यादा जानें जो है वो जा सकती थी फैक्ट्रियों के अंदर। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर हमारे लाहौर का तो इंसिडेंट हम सब बहुत ज़ोर शोर शराबा करते हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं पकड़ के, लेकिन यहाँ रियासत ये नहीं देख रही है कि हर फैक्ट्री यहाँ पे बॉम्ब बनी हुई है मजदूरों के लिए। हर फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर मजदूरों को जो है कम से कम उजरत नहीं दी जाती है, मजदूरों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों से रजिस्टर नहीं करवाया जाता है। ये किस तरह का कानून है, ये किस तरह की रियासत है यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक वाक़या जो पेश आता है, मामूली खुद करवाया हुआ वाक़या, उसके लिए तो बड़ी जड़ के जो है वो शोर शराबा करती है, लेकिन जो मजदूर इस मुल्क को चलाते हैं, जो सरमाया लाते हैं हमारे लिए, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे लाते हैं हमारे लिए, उनकी ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए हमारे पास कोई कानून भी मौजूद नहीं है, अगर है भी तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है यहाँ पे।
तो इसलिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक एक करके अब लवाहिकीन जो है हमारे, वो भी साथी हमें छोड़ के जा रहे हैं। सईदा बाजी हमारे सामने हैं, अजीज़ अंकल हमारे सामने हैं। मतलब ये वो लोग थे कि जिन्होंने इस पूरी तहरीक को खड़ा किया था, जिन्होंने आप सबको मुनज़्ज़म किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मुनज़्ज़म, ये यूनिटी जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी, और आगे भी बहुत सारे काम हैं जो अभी अधूरे रह गए हैं, उसे पूरा करना है। और उसमें से सबसे पहला अधूरा जो हमारा ख्वाब है कि इस जगह को या तो इसको स्कूल बनाया जाए या फिर यहाँ पर 14 की जो है वो मॉन्यूमेंट बनाया जाए। इसके लिए अब हमें बार बार कहना पड़ेगा इसको। सदरान, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और 14 के साथ इज़हार यकजहती करें। दोस्तों और साथियों, आज से 11 साल कबल जब ये वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद मैं भी यहाँ पहुँच चुका था, और फिर हमारे नेशनल ट्रेड यूनियन के और होम वर्कर्स की ज़ारा खान और नासिर मंसूर जैसे साथियों ने इस वाक़ये को, इसको तहरीक की सूरत में आगे बढ़ाया। हम उनके साथ मुसलसल हर साल की तरह यहाँ आकर आप तमाम लोगों को जिनके मासूम बच्चे शहीद हुए उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर होते हैं, और आप उनके जो लवाकीन हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोग अभी तक आप लोगों के मासूम बच्चों के कातिल, जो कि एक सफ़र तंजीम थी जिन्होंने या पत्ता ना लेने की बुनियाद पर आपके मासूम बच्चों को जो है ना ज़िंदा जला दिया गया, और फिर वही लोग हमारे हुक्मरान तबके में से असम्बली के मेंबरान भी बने और जो है ना हमारे वज़रा भी बने, और फिर इमरानी हुकूमत का दौर भी आया, लेकिन इस वाक़े की तहकीकात ना की गई और ना ही कातिलों को कहफरे किरदार तक पहुँचाया गया। उसके बाद शहबाज और जरदारी की पीडीएम हुकूमत आई, लेकिन उन्होंने भी इस पर एक जो है ना कातिलों पे हाथ नहीं रखा, ना उन्हें हमारे अदलिया ने उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की। लिहाजा आप लोग ये समझें कि जो है ना आपके साथ कौन खड़े हैं, ये आपके हुक्मरान नहीं, आपको अपने में से लोगों को मुंतखब करके अपनी नुमाइंदगी करनी चाहिए। आप तमाम शोधा को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। तमाम दोस्तों और साथियों और शहदा को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि आज वो 11वीं बरसी के मौके पे भी आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जमा है, और ख़ास तौर पर मैं सलाम पेश करता हूँ साइड एरिया, कोरंगी इंडस्ट्री एरिया कि वहाँ के मज़दूर भी ये समझते हैं कि आज जो ये मज़दूर की जो 11वीं बरसी मनाई जा रही है, ये किस वजह से मनाई जा रही है। तमाम सीनियर साथी ने सारी बात कर दी है, अपनी डिमांड्स जो है आईएलओ ने जो जुर्म किया है या जो हुकूमतें करती आ रही है वो सारी बात कर दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या अली इंटरप्राइज के बाद इस फैक्ट्री जोन के अंदर हादसात कम हो गए? आज भी इंडस्ट्री जोन के अंदर मुख्तलिफ हादसात होते रहते हैं जिनकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते हैं। आज भी अभी भी आपको बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते का वाक़या है, साइड एरिया की फैक्ट्री में लिफ्ट से गिरकर एक वर्कर की जान चली गई, पर यह कि किसी मीडिया ने कहीं पे कोई खबर नशर नहीं की। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन वहाँ भी गई, उनके लवाकीन से बात की, पर अफसोस के साथ बाज़ औक़ात जो होता है सरमायादार जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल कहीं पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आज जिस तरीके से यहाँ मज़दूर मुनज़्ज़म हुए हैं और इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, इसी तरह अगर हम सारे मज़दूर जो है इकट्ठा होकर मिलकर जदोजहद करें तो वो दिन दूर नहीं है कि सरमायादार और जागीरदारों के ख़िलाफ़ जो है हम एक बड़ी लड़ाई में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का जो साथ आए, ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज मैं जो साना अली इंटरप्राइजेज़ के जो शहदा हैं उनको सुर्ख सलाम पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ जो उनके लवाकिन हैं जो आज तक मुनज़्ज़म अंदाज़ में जो है वो हमारे जो ट्रेड यूनियन के जो साथी हैं इनके साथ खड़े हैं, उनको भी सलाम कि वो अपनी
मजबूत कदम के साथ जो है वो आगे चल रहे हैं। और सबसे मैं जो सईदा बाजी जो है, जो आपकी इस जदोजहद की साथी थी, मैं उनको भी सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। आज वो हम में नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो आज हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और इसी के साथ जो है मैं समझता हूँ जो नासिर मंसूर साहब ने आपको तफसीलन बताई है कि इंटरनेशनली और नेशनली जो तहरीक है वो आपकी कैसे चली, और दोस्तों ने कैसे कैसे जो है वो आपके इस सारी उसके अंदर अपना रोल अदा किया। और अभी भी यह है कि हमें जो है वो मेरा जो पैगाम है वो यही है कि हमें यूनियन को मुनज़्ज़म करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इस फैक्ट्री में आग लगी थी, मजदूर मेहनत कश जल रहे थे, और उसके दूसरे दिन सुबह जो है ये सारी फैक्ट्रियों में काम हो रहा था, किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंगी थी। अगर इन फैक्ट्रियों में यूनियंस होती तो यकीनन जो है वो सारे यहाँ खड़े होते और मालकान जो है वो आज इस तरह से जो है वो जुल्म और ज्यादती ना करते। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अभी भी जो है मैं समझता हूँ कि खासी तादाद में साथी मौजूद हैं जो अपने इज़हार ख्याल करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज की जो तकरीब है, ज़हरा खान इस बात की गवाही दे सकती हैं और नासिर मंसूर भी, कि पिछली जितनी आपकी तकारीब हुई हैं उससे बढ़ के आज जो है मजमा है। ये दो तीन चीज़ों को साबित करता है। वो ये है कि मेहनत के शवाम हमेशा मजलूमों के साथ होते हैं, तुम सहने वालों के साथ होते हैं। और आज कराची के मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ कारखानों से तशरीफ़ लाए हुए ख़वातीन और हज़रात इस बात की गवाही है कि वो उस जुल्म को नहीं भूले हैं, वो सानहे को नहीं भूले हैं जो अली इंटरप्राइज़ में हुआ, और जिस तरह से बेगुनाह जो है वो जले मरे शहीद हुए और आज हमारे दरमियान नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी साबित करता है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन की तंजीमी सलाहियतों को, कि उन्होंने हमें भुलाने नहीं दिया उस वाक़े को कि जिसकी वजह से बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं और आएंगी भी। कानून साजी की हद तक कुछ न कुछ काम जो है वो किया जा सका है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये पूछा जाए कि रियासत ने या हुकूमतों ने इस सानहे से क्या सीखा, तो मेरा ख्याल ये कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा है और हालात उसी तरह से हैं जिस तरह से कि पहले थे। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और वो तमाम सोचने के ज़रूरत है उनके ऊपर। और जिस हालत में हम हैं, जो हमारे सामने मसाइल हैं, सबसे पहला मसला ये है कि ये जो ILO ने और उसके अंदर हमारी हुकूमतों का भी दखल है, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हो, उन्होंने बग़ैर वर्षा से मशवरा किए हुए, बग़ैर ट्रेड यूनियन के साथियों से मशवरा किए हुए एक मुआहदा कर लिया EFU के साथ, और बड़ी ढिठाई के साथ बोल रहे हैं कि ये खुफिया मुआहदा है। खुफिया मुआहदा चोरी, डाके, ब्लैक मेलिंग का होता है। जो लोगों के पैसे हैं उनमें खुफिया मुआहदे नहीं होते हैं। तो ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे नासिर ने कहा कि अक्टूबर के महीने में हम इस पर एहतजाज करेंगे, और ILO या हुकूमत के जो भी लोग समझते हैं कि वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, उनको ये भूल जाना चाहिए। हम उनको जवाबदेह बनाएंगे। हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत कशों और उनके वर्षा के साथ इतना जलील और घटिया रवैया इख्तियार कर सकते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनकी टांगें तोड़ दें। और हम उनको वार्न करना चाहते हैं कि अगर आप अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो ILO की कोई मीटिंग होगी पाकिस्तान में किसी जगह, हम उसको ठीक से चलने नहीं देंगे। और जो लोग आएंगे, अगर वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स की तरह से उनका रवैया बनता है जैसा कि ILO के कंट्री डायरेक्टर का है, तो फिर उनके साथ सलूक भी वही होगा। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो मज़दूरों को इंसान नहीं समझते हैं, और वो इसलिए इंसान नहीं समझते हैं कि हम लोगों की ताकत नहीं है, तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारा एक एजेंडा ये होना चाहिए कि हम नई किस्म की यूनियनें बनाएं
हम हर सनत के तमाम मज़दूरों की एक यूनियन बनाएं। एक एक इदारे की यूनियन मुअस्सर नहीं है। तो ये टेक्सटाइल गारमेंट का शोबा है जिसमें पाकिस्तान के 45% मज़दूर काम करते हैं। तो हमें इसकी एक यूनियन बनाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात ये जो यहाँ कहा गया कि इस मुल्क में कानून मौजूद है, हमने ILO के कन्वेंशन रेटिफाई किए हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा इतना संगीन हादसा जो 11 साल पहले हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान की हुकूमत को शर्म नहीं आई, चाहे वो मरकज़ी हो कि सूबाई हो, कि वो सेहत और सलामती के मसले पर तवज्जो दें। पूरे मुल्क में 550 इंस्पेक्टर हैं और लाखों की तादाद में काम की जगह हैं। और ILO की अपनी रिपोर्ट है कि जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है, अगर उसके मुताबिक साल में एक जो हर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होना चाहिए, अगर वो आज हो गया तो फिर 50 साल के बाद होगा। और ये रिपोर्ट 1986 की थी। तो अब की बात ये है कि अगर आज हो गया तो फिर 100 साल के बाद होगा। तो किसी तरह से भी मज़दूरों की सेहत सलामती पे किसी को कोई भी फ़िक्र नहीं है, इसलिए कि हमारी आबादी ज़्यादा है। वो सोचते हैं एक मज़दूर नहीं होगा तो उसकी जगह 4 उससे कम तनख्वाह पे काम करने को तैयार होंगे। तो हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करना है और सख्ती के साथ इन तमाम हरामजादों को पकड़ना है जो लोगों की जानों को जानवरों की जानों से भी कम समझते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हम सब मुत्तहद हो जाएं और जो लोग इस हादसे के ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, बल्कि हुकूमतों ने मिल के उनको मुल्क से बाहर भेज दिया। अभी आज की खबर है कि कल हाई कोर्ट से कोई फैसला आने वाला है उन लोगों के बारे में जिनके लिए कहा गया कि जी इन्होंने दहशतगर्दी की थी। हमें बहुत गौर से उस फैसले को भी देखना है और फिर हम देखें कि हाई कोर्ट की तरफ हमारा क्या रवैया होना चाहिए। ये लोग इंसानों को इंसान नहीं समझेंगे तो इनके साथ भी जानवरों जैसा सलूक होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि बहुत संजीदगी से सोचें। जो अभी IMF से मुआहदा किया है, अब वो ये भी पूछते हैं हम मज़दूरों को कम अज़ कम उजरत दें कि ना दें, वो भी IMF से पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल ये उनके दलाल हो चुके हैं, क्रिमिनल लोग हैं जो इस वक्त हुकूमतें चला रहे हैं। वो जालिब ने लिखा था एक शेर कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। तो इससे ज़्यादा बड़ा सबूत नहीं है कि कितने कमीने लोग हैं जो हमारे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं और इस मुल्क की मईशत चलाने वाले मेहनत कशों को इंसान समझने को तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कायदीन का ममनून व मशकूर हूँ और साने बल्दिया फायर एसोसिएशन के साथियों का, जिन लोगों ने अपनी अनथक मेहनत और जद्दोजहद से साने बल्दिया अली एंटरप्राइज के शहीद होने वाले मेहनत कशों की याद में एक ताज़ियती इज्तिमा को मुकर्रर किया। मैं सबसे पहले उन शहीद मेहनत कशों को सुरख सलाम पेश करता हूँ जिन लोगों ने अपने जानों का नजराना देकर शाहिदाए अली एंटरप्राइज के मेहनत कशों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। हम तमाम मेहनत कश तंजीमें मिलकर भी आज जो साना बल्दिया के सिलसिले में यहाँ जो इज्तिमा मुकर्रर किया गया है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के साथियों ने, और ख़ासकर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल कामरेड नासिर मंसूर का, जो कि मसलसल आज ये 12वां साल हुआ है इस सिलसिले में नेशनली इंटरनेशनली लीगली इन साने बल्दिया के एसोसिएशन के साथ नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, पायलर, इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन और दीगर मजदूर तंजीमों के तावन से हम इंशाअल्लाह अजीज इस जद्दोजहद को आगे लेके चलेंगे। और आज जो मैं इन मालिकान को
अली एंटरप्राइज के वाजे कर देना चाहता हूं कि यहाँ जो इस प्लाट पर हम कोई दूसरी फैक्ट्री तामीर होने नहीं देंगे। यहाँ मेहनत कशों के अली एंटरप्राइज के शहीदों के लिए एक यहाँ यादगार बनाएंगे और हमारा हुकूमत सिंध से ये मुतालबा है कि अली शहीद अली एंटरप्राइज के सिलसिले में इस प्लाट पर मेहनत कशों के लिए यादगार बनाया जाए। और हम हुकूमत वक्त को भी ये बता देना चाहते हैं कि आप जो कि सरमाएदाराना जागीरदाराना निज़ाम के तहत जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बिल्कुल इदारे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ मेहनत कशों का इस्तेसाल पहले भी था, आज भी जारी है। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो फैक्ट्री और कारखाने दूसरे मालिक को शिफ्ट हुए हैं, हम बाकायदा ये कंपनसेशन कोर्ट का ऑर्डर लेके डीसी वेस्ट को एप्लीकेशन देंगे कि इस प्लाट पे मेहनत कशों का करोड़ों रुपया वाजबात कंपनसेशन और ग्रेजुएटी के सिलसिले में इन मालिकान के ऊपर ड्यू है। लिहाजा डीसी वेस्ट को चाहिए कि वो असिस्टेंट कमिश्नर को हुक्म दे कि इसको सील करके मजदूरों का यादगारी शहीद अली एंटरप्राइज के लिए यादगार बनाया जाए। मैं सईदा आखिर में तमाम मेहनत के साथियों का और ख़ासकर मजदूर रहनुमा पीपल लेबर ब्यूरो हबीबुद्दीन जुनेदी, उनके साथी लियाकत अली मक्सी साहब और दीगर पीपल लेबर ब्यूरो के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। पायलर के ट्रेड यूनियन साथियों का, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कायदीन का, होम बेस्ड वुमेन वर्कर फेडरेशन के कायदीन का, साने बल्दिया एसोसिएशन के कायदीन का, जिन लोग की अनथक मेहनत और जदोजहद से ये ताज़ियती इज्तिमा कामयाब हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा भी साने बल्दिया के मेहनत कशों के लवाकिन के गम में और इनके जदोजहद में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगा। मैं आखिर में एक नारा लगाता हूँ सईदाबाजी के लिए, जो कि आप तमाम साथियों को इसका जवाब देना है। सईदाबाजी तेरे जान निसार, सईदाबाजी तेरे जान निसार, सईदाबाजी तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार सईदाबाजी तेरे जान नशीन। शुक्रिया तमाम मेहनत के साथियों का जो कि आज के इज्तिमा में शिरकत करें।